میرے ابا کا انتقال اچانک ہی ہو گیا تھا۔ ہمیں تو ان کی مرنے کی خبر جب ملی تب ہم ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ بازار سے آئیں گے، ہم ان کے ساتھ کھانا کھا کر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، مگر گھر ابا نہیں آئے بلکہ ابا کا جنازہ آیا تھا، اور پھر سب کیسے ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن ابا کے مرتے ہی، ان کی آنکھیں بند کرتے ہی آس پاس کے لوگوں کی نظریں بھی بدل گئی تھیں۔ جن لوگوں نے کبھی نظر اٹھا کر ہمارے گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ بھی اب دیدے پھاڑ پھاڑ کر ہم ماں بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم تھیں بھی 4 بہنیں، میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ باپ اس گھر سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، تو لوگ کیسے کیسے اپنے رویے دکھانے لگے۔ اماں بھی بیٹھی ابا کے نام کی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ تبھی ایک آدمی آیا۔ اس نے اماں کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں لگی تھی۔ اس جنازے پر بھی اس کے انداز میں عاجزی نہیں تھی، بلکہ اس نے بڑی ہی اکڑ کے ساتھ بڑے ہی تحقیرانہ انداز میں اماں کو باہر بلایا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکی، بس اماں کو بے بسی سے جاتا دیکھتی رہی۔ اماں کافی دیر باہر رہیں، پھر جب کمرے میں واپس آئیں تو ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ واقعی میں بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹھ کر اماں کا دل بہلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اماں کی پریشانی کی وجہ مجھے کچھ دن بعد سمجھ آئی۔ ابا کی وفات کو تقریباً 20-30 دن گزر چکے تھے جب اماں نے اپنی چادر میرے پاؤں میں رکھی اور بولی، بیٹی، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں۔ تو جانتی ہے کہ لوگوں کے رویے کس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں۔ لوگوں کی نظریں اب ہمارے گھر کی طرف ہیں۔ تم جانتی ہو جس گھر میں 4 یتیم لڑکیاں اور ایک بیوہ عورت ہو، اس گھر پر لوگ کیا کیا سوچتے ہیں۔ بیٹی، یہ زمانہ بہت برا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، تمہاری ماں ساری عمر تمہاری غلام رہے گی۔ اماں کی اتنی گریہ وزاری دیکھ کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ رشتے کے لیے اتنی عاجزی کیوں دکھا رہی ہیں۔ وہ میری ماں تھیں، مجھ سے یہ بات حق جتا کر بھی منوا سکتی تھیں، پر اس وقت وہ پریشان لگ رہی تھیں۔ اماں، آپ اتنا سوچ کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اماں کو تسلی دی تو وہ مجھے خاموش کروانے لگیں۔ نہ بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتی ہوں۔ شہریار افندی نے تمہارا رشتہ بھیجا ہے۔ شہریار افندی اپنے بڑے بیٹے کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام کچھ سنا سنا سا لگتا تھا۔ اماں نے بتایا کہ یہ وہی ابا کے دوست تھے جو کہ ان کی وفات پر اماں سے کچھ کہنے آئے تھے۔ میں نے اماں سے لاکھ پوچھا کہ مجھے بتا دو، آخر انہوں نے کیا کوئی ڈرایا دھمکایا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ دولت مند تھے، ان کے لیے تو کچھ بھی آسان تھا، کچھ بھی ممکن تھا۔ جب بھی میں نے کوئی بات نہیں کی، سوچا کہ رہنے دیتی ہوں، شاید کہ اماں پریشان ہوں۔ میں ان کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے مان گئی، جبکہ شہریار افندی کا بڑا بیٹا معذور تھا۔ یہ بات سبھی جانتے تھے، پر اتنا بھی معذور نہیں تھا۔ وہ بس ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا، ذہنی طور پر صحیح تھا، بولتا چالتا بھی ٹھیک تھا۔ پر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آخر اتنے امیر کبیر گھرانے کو اپنے آس پاس کوئی رشتہ کیوں نہیں ملا؟ آخر کو ان کو میں ہی کیوں نظر آئی؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اپنے گھر کے کام کروانا چاہتے تھے، بلکہ ان کے گھر میں تو نوکروں کی فوج ہر وقت اس طرح کھڑی رہتی جیسے کہ ابھی انہیں حکم ملے گا، وہ حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور پھر میں کوئی اتنی خاص خوبصورت بھی نہ تھی، پھر نہ جانے کیوں ان لوگوں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ سوچ سوچ کر میں تھک گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری یہ شادی صحیح بھی ہوگی یا نہیں، مستقبل میں خوش رہ پاؤں گی یا پریشان ہوں گی، پچھتاؤں گی۔ پر ان سب سوالوں کے جواب ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو کون دیتا ہے؟ یوں میں مان گئی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا ان کا معذور ہے، بس اسی لیے وہ تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اتنا اچھا گھرانہ ملتا کہاں سے ہے؟ تم دیکھو تو صحیح، گاؤں میں سب سے بڑا بنگلہ ان لوگوں کا ہے۔ زندگی میں تم عیاشی کرو گی، باقی معذوری کا کیا ہے؟ وہ تو صرف ٹانگ سے لنگڑا ہے۔ مجھے اماں کی بات پر یقین تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ بالآخر کچھ دنوں بعد شہریار افندی پھر آ گئے، بولے کہ یہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا لہجہ اس بار بھی حکم دینے والا تھا۔ مجھے شہریار صاحب کی یہ بات بہت بری لگتی تھی، پر میں خاموش رہی۔ اب تو وہ میرے ہونے والے سسر تھے۔ وہ جب بھی آتے مجھے گہری نظر سے دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ وہی بیٹی ہے جس کا تمہارا شوہر اکثر ذکر کیا کرتا تھا؟ اماں ہاں میں سر ہلاتی تو وہ ہنس پڑتا، جیسے وہ بہت شیطانی منصوبہ میرے لیے بنا بیٹھا ہو، مگر میں کیا کہتی؟ وہ میرے ہونے والے شوہر کا باپ تھا، سو خاموش رہتی۔ اماں بھی تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، وہ مجھے ہی الٹا قصوروار ٹھہراتی۔ بہرحال اماں نے جلد ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی، مگر مجھے ایک بات بہت عجیب لگی تھی کہ شہریار افندی نے بہت پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اب وہ گھر میں اکیلے رہتے تھے، جبکہ گھر میں ان کے 3 بیٹے تھے۔ ایسے میں جبکہ وہاں کوئی عورت نہیں تھی، صرف ایک چھوٹی نند تھی، سب مردوں میں اپنی جگہ کیسے بنا پاؤں گی؟ ان کو ناراض بھی نہیں کرنا اور خوش بھی تو نہیں کرنا، اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے ان کے ساتھ ایک سخت عورت کی طرح رہنا ہے۔
मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं अपने बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी माजूरी की वजह से इन्होंने मुझे बाकी बच्चों की तरह नहीं रखा, बल्कि मुझे बहुत ख़ास अहमियत और तवज्जो दी। तुम देख लेना, अब्बा तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा सलूक करेंगे। मैं तो पहले पहल डर रही थी। मुझे लगा कि शायद कि मेरे ससुर की नीयत ठीक नहीं है, वो मुझसे अपने घर की कमी पूरी करना चाहता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही दिन जब मेरे ससुर को मैंने नमाज पढ़ते देखा तो मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर वो सलाम फेर कर मेरे पास आए, मेरे सर पर दिलासा दिया और बोले, बेटी, अब तुम इस घर का मुस्तकबिल हो, तुम्हें इसी घर के फायदे के लिए सोचना है। मैं तुमसे कुछ और बात नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूँ तुम कम उम्र हो, मगर तुम इन्हें इनकी माँ की तरह रखोगी। मेरे ससुर ये बातें कहते कहते रो पड़े थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स इतना भी ड्रामेबाज हो सकता है। क्या पता इसके आंसू असली हों। मैं दिल में सोचने लगी, मेरे ससुरी को याद करके बहुत रोते हैं, जबकि बाकी लोगों से ये सुन रखा था कि मेरे ससुर ने अपनी बीवी को खुद तलाक दी थी। खैर, वो दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने अब्बा जी खड़े थे। जी अब्बा जी, मैंने हैरत से पूछा था। चलो बेटी, मैं तुमको घुमाने फिराने ले जाता हूँ। घुमाने फिराने? वो क्यों? मैंने दोबारा पूछा तो अब्बा जी हंस पड़े। अरे बेटी, तुम्हारी शादी हुई है ना, अब ये बेचारा तो तुम्हें घुमाने फिराने से रहा। आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी जगह घुमा कर लाऊंगा, तुम खुश हो जाओगी। मैं उनकी बात पर हैरान रह गई। नहीं अब्बा जी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? अब्बा जी गुस्से से बोले। ये कैसी बात कर दी आपने अब्बा जी? मुझे आप पर यकीन नहीं होगा तो किस पर होगा? बस ऐसा है ना कि मैं इनके बगैर कहीं बाहर जाना नहीं चाहती। मेरे बगैर ये भी उदास होते हैं। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम अब्बा के साथ चली जाओ, मैं तो घूमना फिरना चाहता ही नहीं हूँ। मेरे साथ खामखा तुमको बुरा ही महसूस होगा। तुम जाओ, अब्बा जी तुम्हें बहुत सारी जगह दिखा लाएंगे। शौहर की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। ये कैसा शौहर था जो अपनी ही बीवी को अपने बाप के साथ बाहर घूमने फिरने भेज रहा था? मैंने तो उसी की वजह से इनकार किया था, पर जब वो ही मान गया तो फिर इनकार की कोई वजह बनती न थी। अब्बा जान बोले कि चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं हैरान थी कि इतनी सुबह घूमने फिरने कौन जाता है। खैर, मैं कपड़े पहनकर अब्बा जी के साथ चलने को तैयार हो गई। अब्बा जी मुझे लेकर घर से निकले। टैक्सी पहले ही बाहर खड़ी थी, जो कि इन्होंने मंगवा रखी थी। हैरान थी कि अब्बा जी ने मुझसे बात करने से पहले ही टैक्सी मंगवा रखी थी। हम कहा, बेटी ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पास एक पार्क है, मैं तुम्हें वो पार्क घुमा लाऊंगा और बाकी जगह तुम अपने शौहर के साथ देख लेना। दिल में सोचने लगी, अगर शौहर को ही दिखाने के लिए कह देते तो कितना अच्छा होता। शौहर लंगड़ा कर चलते थे, अक्सर ही आराम करते रहते, लेकिन इतना भी तो कमज़ोर नहीं थे कि मुझे घुमाने फिराने न लेकर जा। चलो मैं तुम्हारी तस्वीरें बनवा लाता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं अब्बा जी के साथ उस जगह चली गई जहाँ मेरी तस्वीर बनना थी। जैसे ही हम उस कमरे में दाखिल हुए, वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। मेरे तो दिल को जैसे डर लगने लगा। हल्के हल्के पर्दे थे जिनसे रोशनी आर पार हो रही थी। मैं डर के बैठ गई। अब्बा जी, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। बेटी सब्र करो, अभी वो शख्स आता ही होगा। ये कहकर अब्बा जी भी सामने वाले बेंच पर बैठ गए। मुझे अजीब लगने लगा। आज से पहले मैं अब्बा जी तो क्या, किसी के साथ भी इस तरह किसी दुकान में अकेली नहीं बैठी थी। 2 मिनट गुजरे थे कि पर्दा हटा और एक हट्टा कट्टा आदमी बरामद हुआ। उसके चेहरे पर लंबी लंबी मूछें थीं और वो बहुत ही ज्यादा पहलवान किस्म का लग रहा था। उसने मुझे और बाबा जी को देखते ही एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर फैला ली और मुझे खड़े होने का कहा। मैं खड़ी हो गई। कैमरे के तेज फ्लैश में मेरी तस्वीर ले ली गई। तस्वीर उतरवाने के बाद अब्बा जी बहुत खुश हुए। स्टूडियो वाले से पूछने लगे कि हम आकर ये तस्वीरें कब ले जाएं। बोला कि आप लोग आधे घंटे बाद आ जाएं और अपनी बेटी का शनाख्ती कार्ड भी ले आइएगा। बाबा जान कहने लगे कि आधा घंटा हम यही इंतजार कर लेते हैं। रही बात शनाख्ती कार्ड की, तो हम अंगूठा लगा लेंगे। क्या मतलब, अंगूठा कैसे लगा लेंगे? मैंने पूछा। अरे बेटी, यहाँ से जब भी कोई तस्वीरें लेकर जाता है वो अपने अंगूठे के साथ दस्तखत करता है कि वो अपनी तस्वीरें ले गया था, वरना लोग तो यहाँ पर इन बेचारे तस्वीर बनाने वालों को भी ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारी तस्वीरें फैलाई हैं। बस तभी से इन लोगों ने अपना ये निज़ाम निकाला है कि जो भी तस्वीर निकाल कर बनवाने वाले को देते हैं, साथ उसका अंगूठा भी लगवा लेते हैं और इस बात की तस्दीक कर लेते हैं कि इस स्टूडियो में उनकी और कोई तस्वीर नहीं है। अब्बा जान ने मुझे आधे घंटे बाद अंगूठे लगवाए और घर आ गए। रास्ते में आते हुए इन्होंने एक भी बात नहीं की। ये अपनी ही किसी सोच में खोए हुए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। समझ नहीं आता था कि अब्बा जी आखिर ऐसा क्यों करते हैं। दरवाजे में उतरने से पहले अब्बा जी ने मुझे एक ही बात कही, देखो बेटी, बाकी सब बातें तो हो गई, तुम किसी से भी ये बात कर सकती हो, लेकिन मैंने जो तुम्हारी तस्वीर बनवाई है ये बात तुम अपने शौहर को ना बताना। ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए, और वैसे भी
वो शायद तुमसे अभी भी जलना भी शुरू कर देगा, क्योंकि जब तुम बैरून मुल्क जाओगी और अगर उसके बगैर चली गई वो बेचारा, तो उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी करके ज्यादती कर दी है। मेरा बेटा तुम्हारे काबिल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की औलाद पैदा हो। अभी मैं अपने एक बेटे को ही संभाल नहीं सकता, इसकी औलाद को कैसे संभालूंगा। बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। अपने ससुर की ये बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस शख्स की नीयत ठीक नहीं है, न ही मुझे घर में बसते देखना चाहता है। ये जरूर मेरा घर उजाड़ना चाहता है। खुदा जाने कि ये अपने बच्चों का बाप है या दुश्मन। मैंने ये बात अपने शौहर से बिल्कुल भी नहीं छुपाई। उनको साफ साफ बता दिया कि अब्बा जी तस्वीरें बनवाने के लिए लेकर गए थे। वो भी हैरान होने लगे कि आखिर अब्बा जी ने तुम्हारी तस्वीरें क्यों कर दिया था कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। पर दरअसल मैं अपने शौहर का दिल जीत चुकी थी, उनका एतमाद भी हासिल कर चुकी थी। अगरचे मेरे शौहर को मुझ पर यकीन था, मगर अब मैं जान गई थी कि मेरे ससुर की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले वो मुझे बुरी नजर से नहीं देखते, पर इनका कोई न कोई मंसूबा जरूर था। बिलाखिर एक दिन जो हुआ वो मेरी सोच से भी बाहर था। मेरी नंद और बाकी तीनों देवर भी बैठे थे कि मेरे शौहर उनसे मुखातिब होकर अपनी जुबान में बात कर रहे थे। मैं ये जुबान जानती थी। कहने लगे कि ये बाहर जाएगी तो तुम लोगों को एक बात बताऊंगा। मैं भी थोड़ी देर सफाई का नाटक करके बाहर चली गई, पर मेरे कान उन्हीं लोगों की बातों पर थे। मेरे ससुर ने पहले इधर उधर देखा, फिर अपने बच्चों को बताना शुरू किया। देखो बच्चों, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग भी इस लड़की के रवैये से यकीनन तंग आ चुके होगे। मैंने सोचा है कि इसे तलाक दिलवा कर हम अपनी लड़की ढूंढेंगे, मगर मुझे तुम सबके ताउन की जरूरत है। ये बात कहना थी कि मेरी नंद बोल पड़ी, अब्बा जी आखिर हमारी भाभी में ऐसी क्या बात है कि आप इनको तलाक देने का सोच रहे हैं। मेरी नंद की बात पर अब्बा जी कानों को हाथ लगाने लगे। अरे बेटी, तुम गैर शादीशुदा हो, मैं तुमको क्या बताऊं। बस ना ही बताऊं तो अच्छा है। तुम्हारी भाभी ने वो काम किए हैं जिनके बारे में मुझे बात करते हुए भी शर्म आती है। मैं खामोश हो गई। उसी रात ससुर ने एक और काम किया जिस पर मुझे बड़ा शक हुआ, और इसी बात से ससुर की हकीकत भी खुली। इन्होंने मेरे शौहर को इलाज के बहाने अपने दूसरे बेटे के साथ क्लिनिक भेज दिया। फिर मेरे पास आए और बोले, बेटी मैं तुम्हारे लिए खास कर जलेबियाँ लाया हूँ। मैंने देखा वो जलेबियाँ इन्होंने खास मेरे लिए ही रखी थी। फिर मैं सोचने लगी, जब इस शख्स को मुझसे मतलब भी है, ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, इस घर में नहीं देखना चाहता, तो फिर बिला आखिर मुझसे हमदर्दी क्यों करेगा, क्यों ही मुझे जलेबी खिलाएगा। मैंने जलेबी तो ले ली पर खाई नहीं। रात का वक्त था, मैं इस वक्त सो जाती थी, पर उस दिन जाग रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा जब मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से ही खुला गया। ऐसा इसलिए था कि मेरे ससुर के पास पूरे घर की चाबी थी। ससुर मेरे कमरे में दाखिल हुए, मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर मेरा अंगूठा किसी कागज पर रखने लगे। मैं भी सोने की अदाकारी कर रही थी, लेकिन मैं फौरन से हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा तो अब्बा जी सामने खड़े थे। मैंने उनको देखकर शोर मचा दिया। थोड़ी ही देर में उनके सब बच्चे मेरे कमरे में दाखिल हो गए थे। अब्बा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबने अब्बा जी को मशकूक नजरों से देखते हुए कहा था। ये सब कुछ हुआ ही इस तरह से था कि सब लोग अब्बा जी को बुरा समझने लगे। फिर अब्बा जी ने पहले ही अपने बेटे को क्लिनिक भेज रखा था। अब फिर मेरे कमरे में आने का मकसद साफ जाहिर था। इससे पहले कि अब्बा जी और बुरे इल्जाम में अपनी औलाद की नजरों में गिरते, इन्होंने खुद ही अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बोले, मेरे बच्चों तुम जो समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं बुरी नीयत से आया। जरूर उनकी तरफ देखने लगे। बेटा मैं अपनी बहू की तलाक करवाना चाहता था। इसके बाप की कुछ जायदाद मेरे पास थी जिस पर इसका हक है। इन लोगों को इस जायदाद का नहीं पता, मैं पता चलने भी नहीं देना चाहता था। उसने वो कागजात मेरे हवाले किए थे। चाहता था कि जमीन उसकी बेटी के नाम हो, वो मैं अपने नाम करवाना चाहता था। तुम्हारी भाभी को ये सब बताने से गुरेज कर रहा था। बस इसी वजह से मैं छुप कर इसके कमरे में आया। जलेबी भी दी ताकि ये गहरी नींद सो जाए और मैं इसके अंगूठे अपने पास रख लूं। मैंने इसके अंगूठे लगवाए तो थे, धोखे से इसकी तस्वीरें भी बनवाई थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हीं कागजात पर मुझे इसके अंगूठे के निशान चाहिए थे। मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो अब्बा ये कौन सा आप अच्छा काम करने आए थे? मेरी नंद ने आगे बढ़कर अपने बाप से पूछा। वो शर्मिंदा हो गए। कुदरत ने उनकी पर्दापोशी ना करना थी। शर्मिंदा हो गए। कुदरत ने उनकी पर्दापोशी ना करना थी, तो वो सबके सामने अपना राज अफशा कर बैठे। खुदा का शुक्र कि उसके बाद मेरे सब देवर और मेरी नंद की वजह से मेरी माँ और 4 यतीम बहनों को अब्बा के हिस्से